Hello everyone. Hope you all are good and stay at home. So let's start today's topic, growing food part 3. For watching previous parts, I have shared all the parts in our comment box. Please watch it. Now let's start today's topic, methods of sowing. There are different methods of sowing such as broadcasting, dibbling, drilling, seed dropping behind the plug, transplanting, heel dropping and check row planting. Let's discuss it from first point, broadcasting. Broadcasting is the process of random scattering of seed on the surface of seed beds. It can be done manually or mechanically both. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स संचार। बीजपत्रक की सतह पर बीज के यादृच्छिक प्रकीर्णन की प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। इट मीन्स बीजों को सतह पर अव्यवस्थित ढंग से बिखेरना। ब्रॉडकास्टिंग के दो तरीके होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा हाथों से व दूसरा मशीनों की सहायता से। सेकेंड पॉइंट इज डिबलिंग। डिबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन होल्स मेड इन सीड बेड एंड कवरिंग देम। इन दिस मेथड seeds are placed in holes made at definite depth at fixed spacing. The equipment used for dibbling is called dibbler. It is a conical instrument used to make proper holes in the field. Small hand dibblers are made with several conical projections made in a frame. This is very time consuming process, so it is not suitable for small seeds. Mostly vegetables are sown in this way. डिबलिंग के लिए ज़मीन पर एक निश्चित गहराई व फिक्स्ड अंतराल के साथ होल्स बनाए जाते हैं व जिनमें बीज रखे जाते हैं और फिर उन बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मीन्स समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें, इसलिए इस प्रोसेस को जल्दी से कोई नहीं अपनाता। मोस्टली सब्जियां उगाने के लिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। नाउ इट इज़ द क्वेश्चन टाइम। सो योर क्वेश्चन इज़, What are the methods of broadcasting? ब्रॉडकास्टिंग के दो जो मैंने प्रक्रिया बताई थी, मेथड्स बताए थे, उनके नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Now move to the next point, drilling. Drilling consists of dropping the seeds in furrow lines in a continuous flow and covering them with soil. Seed metering may be done either manually or mechanically. The number of rows planted may be one or more. This method is very helpful in achieving proper depth, proper spacing and proper amount of seed to be sown in the field. Drilling can be done by first sowing behind the plug, by second bullock drawn seed drills and third tractor draw seed drills. जब सतह को खोदकर एक निश्चित अंतराल व निश्चित गहराई में लाइंस बनाई जाती हैं और उनमें बीजों को रखा जाता है, देन उन बीजों को सॉइल से कवर किया जाता है, जिसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। तो आपने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लाइंस बनी हुई हैं ज़मीन पर मिट्टी में। तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन हो, एक से ज़्यादा भी कई लाइंस हो सकती हैं। हैव यू अंडरस्टूड? Now move to the next point,
Seed dropping behind the plug. It is very common method used in villages. It is used for seed like maize, gram, peas, wheat and barley. A man drops seed in the furrow behind the plug. Sowing behind the plug can be done by a device known as malobenza. It consists of a bamboo tube provided with a funnel-shaped mouth. One man drops the seed through the funnel and other man handles the plug and the bullocks. This is a slow and laborious method. It means हल की सहायता से बीजों को बोना। इस प्रक्रिया से मेज, ग्राम, पीस, व्हीट एंड बर्ली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें एक व्यक्ति हल चलाता है व दूसरा व्यक्ति बांस के डंडों को हल में फंसाकर उनके थ्रू बीजों को फैलाता है। वह हल आगे चलता जाता है और पीछे से बीज बिखेरना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इस मेथड्स को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लो भी है। Have you understood? Now move to the next point. Transplanting. Transplanting consists of preparing seedlings in nursery and then planting these seedlings in the prepared field. It is commonly done for vegetable and flowers. It is very time consuming operation. Equipment for placing plants in the soil is called transplanter. Transplanting means आरोपण। इस विधि को सब्जियां व फूल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले बीजों को नर्सरी में उगाया जाता है। जब वह बीज थोड़े बड़े होकर छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तब उन्हें वहाँ से उखाड़ कर एक प्रिपेयर्ड फील्ड में मीन्स जो खेत होते हैं उनमें बोया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, एक औजार की ज़रूरत होती है जिसको हम ट्रांसप्लांटर भी कहते हैं। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट डू वी सोन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। मीन्स ट्रांसप्लांटिंग की सहायता से हम किन फसलों या सब्जियों या किसको हम उगाते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हील ड्रॉपिंग। इन दिस मेथड seeds are dropped at fixed spacing and not in a continuous stream. Thus the spacing between plant to plant in a row is constant. In case of drills, the seeds are dropped in continuous stream and the spacing between plant to plant in a rows is not constant. In heel dropping, बीजों को फिक्स स्पेस के साथ बोया जाता है। Now it is our last point, check row planting. It is a method of planting in which row to row and plant to plant distance is uniform. In this method, seeds are planted precisely along straight parallel furrows. The rows are always in two perpendicular directions. A machine used for check row planting is called check row planter. In check row planting, बीजों को रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ बोया जाता है। इसका अर्थ है कि बीजों को एक सीधी लाइन में एक निश्चित अंतराल पर बोया जाता है और इसके लिए जो मशीन यूज होती है उसे हम चेक रो प्लांटर भी कहते हैं। एंड इट इज योर क्वेश्चन टाइम। सो व्हाट डू वी कॉल द मशीन ऑफ चेक रो प्लांटिंग? हैव यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स?
प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपके लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड समझ आता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी है, तो इससे मैं आपके लिए आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और मोर नॉलेज के साथ आपके लिए वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, आस्क मी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी के साथ हैव अ गुड डे। थैंक यू।